Yesterday we have completed exercise 12b. Today we will be starting exercise 12c, that is based upon the multiplication. Multiplication of algebraic expressions. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन 8x square by 5 minus 5x. तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करते हैं और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ करते हैं. नेगेटिव साइन प्लस से होगा तो प्लस माइनस विल बी माइनस. 8 5 is 40 and this is x square multiplied by x. This will give us minus 40x cube and this is the answer of your first part. Okay? Let's see one more, part number 4. Part number 4 is given minus 5 by 9 ax square minus 5 by 9 ax square by minus 3 by 5 bx square minus 3 by 5 bax square या bxa square बोलो bxa square Now I have told you you have to multiply the constant with constant term. This will give you minus and minus will be plus. Clear है? This will give you 5 by 9 multiply by 3 by 5. वेरिएबल को मल्टीप्लाई वेरिएबल में. This will give you a into a cube into x square into x into b. सारे वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. This will be 3 1 3 3 3 9. 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/3. a into a cube will give us a की पावर 4. b का कोई टर्म नहीं है b और x square into x will be giving you x cube. स्क्वायर है यहाँ पे भी, क्यूब नहीं है तो स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे क्यूब होगा. तो आंसर विल बी 1/3 a cube b x cube. ठीक है, let's see one more part of it. Let's see part number 6. Part number 6 it is given minus 5 by 8 minus 5 by 8 e square cube by 16/25 pq square. के बाय का मतलब मल्टीप्लाई करना है. फिर से कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से होगा. दिस विल बी minus 5 by 8 multiply by 16/25. This will be p square into p into q into q square. ठीक है, तो this will give us 5 1 is 5 5 5 is 25 8 1 is 8 8 2 is 16. यहाँ से मिलेगा minus 2/5. This will be p square into p will be p cube. This will be q into q square, that is q cube. So from here we can clearly see that the answer will be minus 2/3 p cube q cube. Okay, so this is how you can complete all the other parts of question number 1. Now let's move to question number 2. I will be telling only one part of it. Part number 2. It is given b minus 2y minus y square
by by minus 4xy, by minus 4xy. This is a question you have to solve. We will be writing 3 minus 2y minus y square multiply by by minus 4xy. जब इस तरीके से होता है तो आप क्या करते हो, बारी बारी से मल्टीप्लाई, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में, और फिर इसी का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो by मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव अस 3by, by मल्टीप्लाई बाय minus 2y विल गिव अस minus 2b, और y into y हो जाएगा y स्क्वायर। नाउ by multiplied by minus y square, this will give us minus b, और y square to y will be y cube, ठीक है। नाउ अब इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इन सभी टर्म्स में करेंगे, तो minus 4xy multiplied by 3 will give us minus 12xy। Now minus 4xy multiplied by minus 2y, तो minus minus plus 4 into 2 8 x, और y into y will give us y square। Now minus 4xy into y square minus का, तो minus minus plus, this will give us 4x y cube, ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्ट। अब देख लेते हैं, अगर कॉमन टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो उनको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। by का टर्म एक है, दूसरा कोई by का टर्म नहीं है। by स्क्वायर का टर्म है, कोई दूसरा टर्म by स्क्वायर नहीं है। by क्यूब, दूसरा by क्यूब नहीं है। xy, मतलब सारे जो टर्म्स हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, देयरफॉर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि the question was 3 minus 2y minus y square by minus 4xy था, बट मैंने by minus 4xy कर दिया। क्वेश्चन was थोड़ा गलत नोट हो गया था। क्वेश्चन was that you have to multiply this number by minus 4xy। ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो आप हर एक टर्म का मल्टीप्लाई 4xy से करोगे। दिस विल गिव अस 3 minus 4xy into 3, that is minus 12xy, minus 4xy into minus 4y, minus minus plus 4 to the 8xy square। अब minus 4xy का मल्टीप्लाई minus y square, तो minus minus plus 4xy, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। बाकी सारे पार्ट्स आप ऐसे ही कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने पहले बता दिया वो क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मेट था, तो इसमें मैं एक पार्ट बता देता हूँ, बाकी आप अपने आप से करोगे। लेट्स सी पार्ट नंबर 5। इट इज गिवन 3a minus 2b, 3a minus 2b, और मल्टीप्लाई करना है आपको बाय 2a plus 3b, बाय 2a plus 3b, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि 3a minus 2b मल्टीप्लाई बाय 2a plus 3b, ठीक है। अब उसमें यही प्रोसीजर अपनाएंगे आप, पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में, फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में, ठीक है। तो 2a मल्टीप्लाई बाय 3a विल गिव अस 6a स्क्वायर, 2 into 3 6, और a into a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। 2a मल्टीप्लाई बाय minus 2b विल बी minus 4ab। नाउ 3b मल्टीप्लाई बाय 3a विल गिव अस 3 3 are 9ab। Now 3b multiplied by minus 2b will give us minus 6b square। लाइक टर्म्स देखें, जो लाइक टर्म्स हैं इनको आप ऐड कर सकते हो, तो इट विल गिव अस 6a square minus 4 plus 9 will be plus 5ab minus 6b square। So this is the answer of your question number 3, fifth part, and similarly you can solve all the other parts of your question number 3. Now moving to question number 4.
number 4 I am telling one part. Let's see part number second. It is given you have to multiply 3 minus 2x plus 5x square by 5x minus 4. ठीक है, ये भी वैसे ही करना है क्वेश्चन. दिस विल बी 3 minus 2x plus 5x square multiply by 5x minus 4. ठीक है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई सारे टर्म्स में करेंगे, फिर -4 का मल्टीप्लाई सारे टर्म्स में करेंगे. ठीक है, दिस विल गिव अस 5x multiplied by 3 15x, 5x multiplied by 2x will be minus 10x square, 5x multiplied by 5x square will be plus 25x cube. now -4 को मल्टीप्लाई 3 में होगा तो -12, -4 को मल्टीप्लाई -2x में प्लस 8x, -4 को मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर में will give us -20x स्क्वायर. नाउ देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं. 15x और 8x लाइक टर्म्स हैं. 15x प्लस 8x कितना हो जाएगा, दिस विल गिव अस 23x, -10x स्क्वायर और -20x स्क्वायर विल बी -30x स्क्वायर. ठीक है, क्यूब को दूसरा टर्म नहीं एलजेस लिख लो आप, प्लस 25x क्यूब और माइनस. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. आंसर का आंसर जो है वो आगे पीछे हो सकता है. क्यों, क्योंकि जो आंसर प्रेफर करते हैं हम लोग वो सबसे पहले टर्म कौन सा लिखते हैं, जो सबसे बड़ी पावर का टर्म होता है. तो इसको आप चाहो तो एक तरीके से और लिख सकते हैं. यू कैन राइट 25x क्यूब, उसका स्क्वायर टर्म -30x स्क्वायर, उसका x का टर्म प्लस 23x और सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म दैट इज -12. तो ये आंसर और वो आंसर दोनों सेम है, बस हम लोगों ने रीअरेंजमेंट करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो. आई विल बी टेलिंग वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द अदर पार्ट्स. Now see question number 5. I am doing question number 5 third part. In third part it is given you have to again multiply. बड़े टर्म से थोड़ा लेकिन प्रोसेस वही रहेगा. 4x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है इससे बाय x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है. रूल वही होगा, पहले x स्क्वायर से सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई और फिर y स्क्वायर से सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई. x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर से करेंगे, वी विल गेट 4x क्यूब. x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 24x स्क्वायर में तो क्या मिल जाएगा, प्लस 24x इंटू x कितना हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर विल गिव अस x क्यूब एंड y. ओके, नाउ प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3y स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर विल गिव अस 3x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, माइनस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें सब में करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर विल गिव अस माइनस 4x क्यूब y. माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 24x स्क्वायर में विल गिव अस माइनस 24x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, क्यों, x y दोनों है, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर और माइनस का मल्टीप्लाई 24 से तो -20. ठीक है, एक टर्म और रह गया माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर से, दिस विल गिव अस -3xy क्यूब
अब y स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर से विल गिव अस प्लस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ y स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में होगा तो दिस विल गिव अस प्लस का 24x y क्यूब और फिर y स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर में होगा दिस विल गिव अस प्लस 3y। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी लाइट टर्म्स कौन से हैं। x क्यूब का ये एक टर्म है, दूसरा क्या x क्यूब का टर्म है कहीं पे नहीं है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 4x क्यूब। फिर x क्यूब y का दूसरा टर्म है, हाँ x क्यूब y का एक ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है, तीसरा कोई टर्म नहीं है। तो x y क्यूब के टर्म्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 24 माइनस 4 विल बी प्लस का 20 x क्यूब y। x स्क्वायर y स्क्वायर का टर्म और कोई दूसरा है, हाँ एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर y स्क्वायर विल गिव अस 21 माइनस 21x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 21 एंड प्लस 4 विल बी गिविंग अस माइनस 17x स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ x क्यूब y का टर्म है कोई, हाँ एक ये x क्यूब y का टर्म है जो हम लोग पहले ट्रीट कर चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं x y क्यूब का कोई दूसरा टर्म है, हाँ एक ये है और एक ये है, तो माइनस 3xy क्यूब प्लस 24xy क्यूब विल गिव अस प्लस का 21xy क्यूब और लास्ट में प्लस 3y। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4x क्यूब प्लस 20x क्यूब y माइनस 17x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 21xy क्यूब प्लस 3y क्यूब। सो द थिंग इज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द लाइक वेरिएबल्स। इफ यू गेट द लाइक वेरिएबल्स देन यू आर सपोज्ड टू ऐड और सबट्रैक्ट देम एंड देन फाइनली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 12C। In our next class we will be starting with the division of algebraic expressions.